Hello, Namaste, Jai Gurudev. What a lovely day today. So, Hindi and English mix chalega? I hope so. Maybe you can put in comment. I'm not that familiar with all this, Insta and all that, but still trying my best to get rid of these technical things. So, Akshaya Tritiya is the name. Yeah, an amazing festival. I had been, reading and collecting datas and so many things about it, and it just amazed me. Not with many festivals, these many historical, spiritual, religious, mythological facts are connected. Not many festivals like this. There are particular festivals like Deepavali is one thing, specific to something. Then you have other things like all the states, we have New Year, different New Years, so that is connected to New Year. Like that. But this Akshaya Tritiya, whatever direction you want to take it, it goes. And if you look at any of the festivals that we celebrate throughout the year, it will be either connected to that भोजन मतलब फूड जो हम उस दिन खाते हैं एंड द हार्वेस्ट मीनिंग एग्रीकल्चर, या तो खाने के बारे में खाने से कनेक्टेड होगा या उगाने से कनेक्टेड होगा. ऑल द फेस्टिवल्स लाइक सी दशहरा, व्हाट डू, कलश रखते हैं, उसके चारों तरफ जौ रखते हैं, बार्ली जिसको बोलते हैं ना, जयंती, उसको जयंती बोलते हैं, है ना. तो उस दिन से शुरुआत होता है. अष्टमी के दिन कुछ अपने हल बैल ये सब की पूजा होती है. कार्तिक महीना शुरू होता है, फसलों की बुआई शुरू होती है. लाइक दैट संक्रांति इज लाइक व्हेन द क्रॉप हैज मैच्योर्ड. होली इज लाइक व्हेन इट इज रेडी टू हार्वेस्ट. सो दिस अक्षय तृतीया इज समथिंग अमेजिंग. what generally do, how it is related to the farmers. I mean, I am basically a farmer with all that taglines. Especially in Odisha, the farmers make a group, every village or whatever, and then they call it that Akha Mutti, something they call it. Let me check the name. I had noted down. It's a little tedha name. Akhi Mutti Ankul. That's the name of the festival, and they start sowing rice from tomorrow. And today they will be worshipping and celebrating all these, the cattle they will use in the farm, the tools that will be used, and the seeds, and the whole family and society comes together and they do that. नाम है इसका अक्षय एंड तृतीया. Let's see, look at the words. What does it mean? Akshay. This word in Sanskrit it means no. जैसे आश्रम है ना, मतलब जहां श्रम नहीं होता है ना, ऐसे ही सब काम हो जाता है, उसको आश्रम कहते हैं. वैसे क्षय माने होता है जिसका विनाश हो जाता है, which will perish, which will diminish eventually. Akshay means which will not diminish, which will not perish. Okay, that is Akshay. Tritiya is the third day of the fortnight. Every 15 days we get it. Akshaya Tritiya या तो चढ़ते चांद में या उतरते चांद में, मीनिंग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष. या Tritiya, you know what it means? This tithi in our Sanatan calendar is something which never change. The 4th, 5th, 7th, 8th, 12th days might change as per their calculations of the sunrise and sunset, but Tritiya never changes. Check it. So this Tritiya also denotes something which will not change. Okay? And then Tritiya also means river, the water. Tritiya इसका and how it also means river. And which river? The river which will never dry. And the first river, the mythology, it says that Varun Devata, when he was doing tapas and all that, he got
द फर्स्ट रिवर एज ए बून इस धरती पर। आप देखो तो धरती पर पानी, हवा और भोजन, what I call off factor, air, water and earth. Earth is food, like no, it gives you food. ऑफ फैक्टर को awesome रखने के लिए सारा नाटक है। सृष्टि पर जीवन चले उसके लिए भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। ये अलग बात है कि टुडे वी डिडंट स्टॉप ब्रीदिंग बट वी चॉप डाउन द सोर्स ऑफ द एयर्स, द प्राण वायु, द ऑक्सीजन। पेड़ पौधों को हमने काटा, सांस लेना बंद नहीं किया, बट इनडायरेक्टली हमने वो ऐसी व्यवस्था कर दी कि सांस लेने में तकलीफ हो आगे चल के, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग टुडे। सो दिस तृतीया इज समथिंग दैट इम्पॉर्टेंट, एंड it also means in Sanskrit the power to increase, to grow fertility in the earth. You know, only when the earth is fertile, every other creature on this planet will remain fertile. The day the fertility in the earth goes down, you got it, right? Like that. Now, this Akshaya Tritiya is the date when there are a lot of, good things happen in the past. अगर उसको गिनने बैठो ना तो it's kind of n number of things, like you would have seen in Twitter and all the social media. परशुराम जयंती की शुभकामनाएं। लॉर्ड परशुराम जो उनके आवेशावतार कहते हैं, वो गुस्से में थे ना, उन्होंने सृष्टि को कितनी बार जीत लिया, मारकाट ज्यादा किया, फिर भी वो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म आज हुआ, इसलिए परशुराम जयंती भी कहते हैं। एंड कोइंसिडेंटली दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज एंड द जैन्स टुगेदर। जैन के एक तीर्थंकर थे, उन्होंने 1 महीने फास्ट रखने के बाद आज ही के दिन पहली बार शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस पीकर ही ब्रोक द फास्ट। वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर द जैन्स ऑल्सो। एंड यहां हमारे में कहते हैं कि कुबेर जो धन के देवता है ना, द मोस्ट वेल्दिएस्ट अमॉन्ग द गॉड्स, वो सबको देते हैं। कुबेर का खजाना भी कहते हैं हम, जो कभी जिसका क्षय नहीं होता। ही गॉट दैट वेल्थ टुडे ऑन दिस डे। माँ गंगा, द भगीरथ, आफ्टर 1000 some years of penance, इतने साल की तपस्या, हजारों साल की तपस्या के बाद भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे आज ही के दिन। And why that river was needed on the earth? For the survival of the life. Today is the day actually we should start worshipping the water. जैसे भोजन को कहते हैं प्रसाद की तरह मानो, वैसे पानी, जल को भी तीर्थ की तरह मानो। कन्नड़ में कहावत है, निम बाइंदा बंदे ने तीर्थांता, मतलब कहते हैं आप संत जनों को कहते हैं शिष्य लोग कि आपके मुखार बिंद से निकलेगा वही तीर्थ है। तीर्थ माने क्या होता है? जिसको हम ऐसे करके लेते हैं और ऐसे पी के ऐसे करते हैं। हम अपने जल को आज से तीर्थ की तरह मानना शुरू करें तो जल का क्षय नहीं होगा। वेस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं वेस्ट नहीं होगा, पानी वेस्ट करना आज से बंद कर सकते हैं। एंड टुडे वाज द डे व्हेन लॉर्ड व्यासा ही स्टार्टेड राइटिंग महाभारत विद द हेल्प ऑफ गणेश जी। आज शुरू किया इन्होंने महाभारत लिखना, वेद व्यास ने। तो यू कैन इमेजिन, पहले जितने भी काम हमारे होते थे सब मुहूर्त और तिथि और शुभ घड़ी को देखकर होता था। सो द समथिंग विच वाज गोइंग टू मेक हिस्ट्री और thousands of years which will survive as amazing knowledge, उसकी शुरुआत आज के दिन करी वेद व्यास जी ने। वो भी विष्णु के अवतार थे। हाउ इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड देन मैंने जो लिस्ट बनाई है, इट्स लाइक हाँ, अन्नपूर्णा। अब देखो, जब गंगा आई धरती पर आज के दिन, मतलब धरती पर जल आ गया, अब धरती सूखी नहीं रहेगी, तो अन्नपूर्णा आ गई, माने अब अन्न की भी कमी नहीं रहेगी धरती पर। कैन यू इमेजिन? पानी आया, अनाज भी आ गया, सब धरती को खुश रखने के लिए। आप देखना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल आर फेस्टिवल्स आर ईदर they teach you something so that the fertility of earth is maintained, or they tell you to be grateful for whatever the earth has given. जो वैसाखी होता है, जो न्यू ईयर हम मनाते हैं ना भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में, वो हार्वेस्ट का जब सीजन खत्म होता है, आफ्टर दैट वी सेलिब्रेट दैट न्यू ईयर, when the earth has given you enough to eat
नाउ लेट्स सेलिब्रेट दैट फॉर द होल ईयर देयर इज इनफ टू ईट। तब लाइफ में प्रायोरिटी भोजन था, तो शरीर स्वस्थ होता था, मजबूत होता था। अभी प्रायोरिटी थोड़ी बदल गई, इसको सजा ना देखो, मैं भी थोड़ा कलरफुल कपड़े पहन के आज की इंस्टा लाइव कर रहे हैं, तो इसको ढकना वो ज़्यादा प्रायोरिटी ले लिया, इसको मजबूत रखना ही प्रायोरिटी नहीं रहा। I think this is high time. This pandemic is teaching us that look, keeping the body strong and immune is more important than having all branded clothes and all that on this body. Not that that is not needed, but that should not become priority in life. You got it? And so this tithi, this festival gives you that knowledge कि look, अब आज से अपनी प्रायोरिटी चेंज करो। द सृष्टि विल सर्वाइव व्हेन द ऑफ फैक्टर इज ऑसम। तो आज गंगा भी आए थे, आज अन्नपूर्णा भी आए थे, है ना। कुबेर को धन मिला था, और ये सब जब हो गया, भोजन पानी और वेल्थ की व्यवस्था हो गई, देन समवन स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द नॉलेज। डोंट यू थिंक दैट इट जस्ट कनेक्ट्स ऑल द dimensions of life? It makes the life very strong, very very complete kind of wholesome, जहाँ ज्ञान भी है, भोजन है, भजन है, मन शांत है, स्वास्थ्य है, धन है, सब कुछ है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग इन लाइफ, राइट, है ना। और बताता हूँ आपको, यू रिमेंबर इन महाभारत टाइम व्हेन द्रौपदी का चीरहरण वाज हैपनिंग, जब दुशासन वो खींच रहा था कि आई विल मेक यू और निर्वस्त्र कर देंगे, तो टुडे वाज द डे, दैट वाज अक्षय तृतीया, when Krishna gave that अक्षय क्या बोलोगे उसको, लाइक वो जो साड़ी थी जो खत्म ही नहीं हुई, वो वरदान दिया ना। जैसे उन्होंने बोला दुख हरो द्वारका नाथ, जब तक वो खुद से पकड़े रही तब तक तो झगड़ा चलता रहा, कृष्ण नहीं आए। जब लगा कि अब नहीं बचा सकते अपनी अस्मत, तो उन्होंने हाथ छोड़ा, हाथ उठा, बोला दुख हरो द्वारका नाथ, तब आए, और यहीं से जो साड़ी आई वो अक्षय हो गई, जिसका विनाश ही नहीं हुआ आज ही के दिन। And one more thing related to Mahabharata time, that Yudhishthir was blessed with अक्षय पात्र। सूर्य की जब पूजा कर रहे थे युधिष्ठिर, तो उनको सूर्य ने अक्षय पात्र दिया, माने उसमें भोजन की कमी होगी नहीं। पूरा ब्रह्मांड आ जाए तुम्हारे घर खाने के लिए, पूरी सृष्टि के जीव आ जाए, ये पात्र खत्म, उससे भोजन खत्म नहीं होगा। दैट इज हाउ हैविंग दैट पात्र इन एट होम, द्रौपदी कुड सेव हर हस्बैंड्स फ्रॉम दुर्वासा ऋषि का श्राप। नहीं, दुर्वासा आए नहा धो के, तब तक में खाना खत्म हो गया था। उसमें वरदान क्या था कि जब तक द्रौपदी नहीं खा लेगी तब तक इससे भोजन खत्म नहीं होगा। एंड दैट डे द्रौपदी ने भी खा लिया था। तो वो स्टोरी है दैट यू नो, बट इट वाज दिस डे ऑफ अक्षय तृतीया व्हेन अक्षय पात्र वाज गिवन बाय लॉर्ड सन, सूर्य देवता से युधिष्ठिर महाराज को मिला। तो ये सब एक कनेक्शंस है टू रियलाइज दैट लुक, ये सारी व्यवस्था पहले से हो चुकी है सृष्टि में। आपको रोने चिल्लाने की जरूरत है नहीं कि भोजन आएगा कि नहीं, पानी आएगा कि नहीं, हवा, सब आएगा। द ओनली थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज डोंट वेस्ट दीज थिंग्स। जो नेचर में, जो प्रकृति में हजारों हजार साल की तपस्या से हमारे ऋषि मुनियों ने लाकर इस धरती पर प्राणवायु को रखा, पानी को, जल को रखा, नदियों को रखा, धरती की उत्पादक शक्ति को बना के रखा। We don't have any authority to waste it all. Don't decrease the fertility of the earth. Chemical का usage, all that, वो सारा कुछ कभी कर लेंगे बात। We all know that, क्योंकि हम आज वो ज़्यादा झेल रहे हैं। उसी का प्रतिफल है कि हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम दिख रही है हमारे पूर्वजों की तुलना में। सारी व्यवस्था जो हजारों लाखों साल से बनी आई, हमने आज उसको कम किया। डोंट डू दैट। और इफ यू डोंट cut the trees and pollute the air, water and earth and all that, तो कभी कोई कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि there is enough for the need of everyone on this planet, but there is not enough for the greed of one single person. तो कुछ भी करे लाइफ में, इन तीनों चीज़ों को बचा के रखना है हमेशा, बाद में कुछ करना है। कहते हैं ना, वो एक गाँव में कहावत है कि डायन भी ये करती है ना, तो एक घर छोड़ के करती है। तो ऐसा कुछ भी करना हो तो इन तीन फैक्टर्स को, एयर, वाटर एंड अर्थ, ऑफ फैक्टर, फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ
प्योरिटी ऑफ वाटर एंड फ्रेशनेस ऑफ एयर, ये 3 चीज़ों को बचा देना, बाकी जो करना है कर लेना. एंड दिस इज व्हाट दे फॉलोड, आवर एंसेस्टर्स दे फॉलोड. ओके, नाउ कमिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. यू नो दिस इज द टाइम व्हेन द रेन इज अबाउट टू कम. मानसून आने वाला है. तो यू नो मानसून जब आने वाला होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी जिसके मन में होते ना, होता है फार्मर, किसान. वो ना देखता रहते इन गर्मियों में कि कब आएगा रबी, खरीफ, वो सब सीजन सब सुना होगा आपने. जो भी होता है, मेरे लिए भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कि रबी कौन सा है, खरीफ कौन सा है. लेकिन जब हम धरती में अनाज डालते हैं ना, बीज डालते हैं, वो अनाज धरती के अंदर जो हम डालते हैं उसको अनाज नहीं कहते, बीज कहते हैं. बीज को अंदर डालते हैं तो जो उससे आता है बाहर, दैट इज अनाज, द ग्रेन. यू नो, सीड गोज इन, द ग्रेन कम्स आउट. यू नो, ये बड़ा जबरदस्त फिनोमेना. तो अभी जब बीज को स्प्राउट होने के लिए इट नीड्स मॉइस्चर. मॉनसून अभी आने वाला है, मीनिंग देयर विल बी इनफ वाटर ऑन दिस लैंड. धरती पर पानी काफी होगा. तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सोइंग द सीड, प्लांटिंग द प्लांट फॉर अनदर 6 months, 3 months, whatever, depends. Why, the farmers today, they start the plantation or the seed sowing with turmeric. हल्दी से शुरू करते हैं. अब हल्दी से क्यों शुरू करते हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है. जैसे अक्षय तृतीया के बारे में बताया ना, तृतीया माने समथिंग विच नेवर डिमिनिश, विच नेवर चेंज, विच मीन्स वाटर, विच मीन्स फर्टिलिटी. ऐसे ही हल्दी जो है, इसको संस्कृत में कहते हैं हरिद्रा. हरिद्रा, हरि मीन्स पता है ना आपको, हरि माने द लॉर्ड, विष्णु भगवान या कृष्ण. द्रा माने उनका फेवरेट. हरिद्रा कहते हैं ये भगवान का फेवरेट है. आयुर्वेद में देखो तो हल्दी को कहते हैं औषधियों का राजा. आपने कई बार गुरुदेव को सुना होगा कि हल्दी में देयर आर 17 डिफरेंट मेडिसिनल क्वालिटीज that the science of today, the allopathy and all these people, they did not agree to it for 20 years or something. 20-30 साल पहले तक नहीं मानते थे. नहीं, इट्स जस्ट ए कलर पिगमेंट है, इसमें और कुछ नहीं. ऐसा नहीं था. अब जाके मान रहे हैं कि द टर्मरिक इज गुड फॉर सो मेनी थिंग्स. 17 वो कह रहे हैं, बट इट हैज मेनी क्वालिटीज. हरिद्रा हरि का फेवरेट है. और इसका क्या पता है, मैं आपको इसका बताता हूँ. मैंने लिखा है, हाँ, अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं ना, लैटिन में कहते हैं टेरा मेरिका. हाँ, टेरा मेरिटा. टेरा इज अर्थ, मेरिटा इज मेरिटोरियस. लैटिन में माने जो अप्रिशिएटिंग द फर्टिलिटी ऑफ द अर्थ इज द टर्मरिक इन लैटिन. लैटिन से ही आता है ना अंग्रेजी के शब्द. अब संस्कृत में इसके और सिनोनिम्स क्या है हल्दी का, देखना, यू विल बी अमेज्ड. इट इज कॉल्ड अनेस्था. अनेस्था माने क्या, विच कैन नॉट बी सैक्रिफाइस्ड. आप देखना, हवन में सारी सामग्री डालते, हल्दी को नहीं डालते. क्यों, ये हरि का प्रिय है. दिस इज द फेवरेट ऑफ द लॉर्ड. इसको हवन में नहीं डालते. विच कैन नॉट सैक्रिफाइस्ड, है ना. भद्रा. अब भद्रा माने होता है विच क्रिएट्स लकी इन्वायरमेंट, ऑस्पिशियस जो है. आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसको गूगल से देख के, डिक्शनरी से देख के. हैव यू सीन इन योर विलेजेस एनी, जब कोई भी त्योहार होता है, एनी मैरिज, एनी फेस्टिवल, द टर्मरिक इज द फर्स्ट थिंग. आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो कार्ड एंड ऑल दैट, नो इन्विटेशन कार्ड, जब प्रिंट सब नहीं हुआ था 20-30 साल पहले, तो देखते थे कि किसी को इनवाइट करना हो, इफ यू हैव टू सेंड इनविटेशन दैट लुक माय डॉटर इज गेटिंग मैरिड, प्लीज विजिट अस. तो एक हल्दी होता, 2-3 इंच का हल्दी देते थे, एक जनेऊ होता था, एक सुपारी होता था, और एक पान का पत्ता. दीज 4 थिंग्स वेयर द काइंड ऑफ यू से द इन्विटेशन कार्ड. और उसके साथ हैंड रिटन एक नोट होगा. तो नोट को पढ़ने की जरूरत नहीं थी. वो जो लेके जाते थे ब्राह्मण देवता या जो भी हजाम लोग, वो कह देते थे एंड पीपल विल कम, बिकॉज नॉट मेनी पीपल, स्पेशली द एल्डर्स, कुड रीड एंड राइट एट दोज डेज, बट दे वर नॉलेजेबल. ज्ञानी तो थे, वाइज मैन, बट दे वर नॉट एबल टू रीड और राइट. और कैसा लिखा है इस पर भी तो डिपेंड करता है ना, वेदर इट इज लेजिबल और नॉट. आपने क्या लिख के दिया. तो बट दीज 4 थिंग्स वर लाइक इन्विटेशन.
हल्दी, धोती को हल्दी से रंगते थे, कपड़े में हल्दी का कलर लगा, आज भी लगाते होंगे, है ना। तो इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो जब हम अगले साल के फसल की बुआई शुरू कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग ऑस्पिशियस। तो ये हल्दी इज व्हाट, भद्रा। देन इट कॉल्स बहुला। बहुला माने, बहु माने बहुत, बहुला माने विच क्रिएट्स मेनी, है ना। एक प्लांट लगेगा ना तो वहां पर और बहुत सारे प्लांट उगते हैं इससे। एंड इट क्रिएट्स मेनी नॉट इन द सेंस दैट इट विल हैव मेनी टिलर्स, लाइक एक प्लांट से 10 आ गए। इट विल क्रिएट मेनी इन द सेंस इट विल सेफ गार्ड ऑल अदर प्लांट्स विच आर नियर बाय, माने बाकी को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। द वसुधैव कुटुंबकम इज राइट फ्रॉम देयर। नहीं तो बहुत सारे प्लांट होंगे या जो उनके जैसे ये अकेशिया और यूकलिप्टस है ना, उसके नीचे तो कुछ उगता ही नहीं। नॉट इवन द बर्ड्स सिट ऑन दैट ट्रीज, दे आर समथिंग दैट यू नो ऑस्पिशियस का उल्टा जो होता है ना, वो उसके लिए शब्द है। बट दिस हरिद्रा बहुला is called bahula because it helps to grow many. Okay, then it is called dirgharaj. Dirgh meaning long, you know, in size long. Dirgharaj meaning something which is long in appearance. इस बार जो हम हल्दी हार्वेस्ट किया ना हमने, लाइक फरवरी मार्च में हमने हार्वेस्ट किया। जनरली उसकी हाइट ना जो प्रोफेशनली और इंडस्ट्रियल स्केल पर जहाँ हल्दी लगाते हैं ना, लाइक दे डू डेंस प्लांटेशन पर स्क्वायर फीट एंड ऑल दैट, दे विल हैव हार्डली यू नो इतना ऊंचाई तक का होगा, लाइक मे बी 3 फीट, 2.5 to 3 फीट का पौधा हुआ तो इनफ। इन माई फार्म आई विल शेयर सम टाइम द फोटो, इट वॉज, आई एम नॉट 6 feet, आई एम यू नो लिटिल लेस, इट वॉज दिस बिग, मेरे से इतना 6+ था वो पौधा। एंड नॉट 1 plant or 2 plant, दैट होल हमारा यू नो, इफ यू हैव विजिटेड आवर फार्म, तो मैंगो का जो एरिया है ना वहाँ पर हमने लगाया था। इट वॉज मोर देन 6 feet का हाइट। लग रहा था थोड़ा और बड़ा हुआ तो इट विल अपीयर लाइक इट विल कम्पीट विद द बनानास। एंड आई टेल यू द थिकनेस ऑफ दैट, एंड इट्स ऑन द रॉक। आई मीन वो तो आपने देखा होगा ना वीडियो में भी, वो जो पर्माकल्चर की है, यू वुड हैव सीन। एंड सीइंग दैट पीपल कम टू नो, कैन यू टीच मी दिस, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू। आज भी उस एक पर्माकल्चर के वीडियो को 3-4 हज़ार लोग रोज देख रहे हैं अभी भी, आज भी, और उसी को देख देख के ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं। दे गेट इंस्पायर्ड दैट ऑन द स्टोन समथिंग ग्रोज। हल्दी हैज दैट पावर। और नाउ व्हेन आई रीड दैट यू नो इट्स बहुला, और उसका एक और दीर्घराज, और एक होता है जो कीड़े मकोड़ों को नहीं आने देता, या निस्वा, वन नेम इज निस्वा, जो विच इज remover of negativity and darkness. Anything what is not needed in nearby, it will just repel all that. तो खेत में मैं देखा, now I am able to you know retrospect and see that उस एरिया में एक भी कीड़ा नहीं था। ऐसे भी हमारे खेत में कीड़ा कम ही होता, बट हल्दी के पत्ते पर कोई कीड़ा नहीं दिखा। I have not been to many farms where they grow haldi, तो आई डोंट नो, लेकिन टू यू नो माई नॉलेज कि हल्दी पर कोई स्प्रे वगैरह पौधों पर नहीं करना पड़ता, क्योंकि इतना वाइब्रेंट है अंदर से। आप समझ रहे? देन आई टेल यू इसका और क्या नाम है। दीर्घराज हो गया। हृदय विलासिनी, यूजिंग विच द हार्ट बिकम्स डिलाइटफुल। हार्ट के लिए बड़ी अच्छी चीज है हृदय विलासिनी। तब से लिखा, ये डॉक्टर लोगों को 20-25 साल तक समझ में नहीं आया था, लेकिन thousands of years, तब के समय जब से गंगा इस धरती पर आई, तब से इसको हरि को प्रिय, हमारे हरि के समय से था ना, वो हिस्ट्री को अगर हम मानते हैं एटलीस्ट 5-10 हज़ार साल पहले से हरिद्रा इनका नाम था। हृदय विलासिनी, इसको यूज करोगे तो हार्ट विल बी डिलाइटफुल, हेल्दी, इन द बेस्ट ऑफ इट्स कंडीशन, है ना। और इसका नाम है जयंती। जयंती माने होता है विनर ऑफ सिकनेस। नाउ यू जस्ट सी, at this time of pandemic, it is advised by many, by the wise, by the previous generation कि बेटा पानी में हल्दी बॉयल करके पियो, तो पूरा यहाँ से लेके पूरा सिस्टम सही रहेगा, हेल्दी रहेगा। जयंती, ओके, हृदय विलासिनी। उसके बाद ज्वरांतिका, ज्वर माने होता है फीवर। अब ज्वर, जो ज्वर को अंत कर दे, so many people, you know, I have advised, not that I, you know, मैं कुछ मंगल ग्रह का सत्य नहीं बताया,
लोगों ने बताया कि हल्दी का पानी पीने से, हमारी दादी ने बताया, गांव के लोग बताते हैं बुखार में ये पियो तो चला जाएगा। बहुत लोगों के ठीक हो गए। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, किसी को अगर हुआ है, इफ यू नो समवन, जस्ट यूज इट, बिकॉज वन ऑफ द नेम ऑफ हल्दी इज ज्वरांतिका, जो ज्वर का अंत कर दे। ओके कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो। ये चीजें पहले मान लो, बाद में जानो, वहां करो कि उसको यूज करो, फिर पता चलेगा। ओके देन इट इज कॉल्ड क्षमाता। क्षमता से हुआ क्षमाता। क्षमता इज कैपेबिलिटी, क्षमता इज समथिंग विच इनहैंसेस द कैपेबिलिटी। माने शरीर में पावर आता है बाबू। इट मेक्स योर बॉडी स्टैमिना स्ट्रांगर। तो इम्यूनिटी होती है ना, स्टैमिना, लड़ने की क्षमता शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर और नस नाड़ी के लेवल पर। wherever it is needed you get the fighting capacity. Okay, क्षमता. Isn't it interesting? Yeah, I get goosebumps when because हमने उगाया इनको और रखा और अभी आज लगा रहे हैं। मतलब बाहर खेत में वाईफाई नहीं था सही से, नहीं तो हम आपको वहीं से मैं लाइव करने का सोच रहा था कि दिखाते कि देखो अभी हम हल्दी लगा रहे हैं, लेकिन वो नेटवर्क कमजोर था, सॉरी है ना। और इसका नाम क्या है? लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का माने सबको पता है। मंगल प्रदा। मंगल इज ऑस्पिशियस, प्रदा मीन्स द गिवर, समथिंग विच गिव्स ऑस्पिशियस थिंग्स। इसीलिए मैं बताया ना, अभी सारे त्योहार में इसका यूज होता है सबसे पहले। नाउ यू टेल मी हाउ वाइज आर यू नॉट, आर यू नॉट प्राउड ऑफ आवर फोर फादर्स, आवर एंसेस्टर्स, हाउ नॉलेजेबल दे वर, क्या क्या नाम रखा है इनका, नहीं? एंड देन मिरागिनी, उसका मतलब होता है किलर ऑफ फैट। समझ गए? ये तो बोलना नहीं पड़ेगा ना। यूज इट इफ यू वांट टू रिड्यूस फैट, है ना। निस्वा, एज ए टेल यू, रिमूवर ऑफ निगेटिविटी एंड ऑल दैट। युवंती इसका नाम है। युवा माने क्या होता है? द यू नो यंग वंस। युवंती इज युवा का स्त्रीलिंग, द फेमाइन पार्ट। यू नो इट मेक्स यू वाइब्रेंट लाइक ए यंग गर्ल। वो यूथफुलनेस को मेंटेन करके रखने का चीज है ये। सो दीज आर द यू नो आई थिंक फ्यू ऑफ द नेम्स। आई एम श्योर गूगल डजंट हैव दैट कैपेसिटी टू गेट ऑल द नेम्स एंड ऑल द यू नो इनके जितने प्रभाव हैं जहाँ जहाँ इनका यूज होता है। आई थिंक दे डोंट हैव दैट मच ऑफ थिंग्स, बट इतना हमारे लिए काफी है, नहीं कि these many names, that is why on this day they use all this. It's a denotion कि आज के दिन शुभ काम को शुरू करना है, क्योंकि इतने सारे शुभ काम आज ही के दिन हुए। ज्ञान से लेके यू नो ऑल दैट, एज ए यू नो प्रकृति में जितने तत्व दिख रहे हैं उनकी रक्षा करने का काम आज से शुरू हुआ। परशुराम वीरता के प्रतीक हैं, गंगा जल की प्रतीक है, मतलब जीवन की प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक महाभारत। ये सब आज से शुरू हुआ, हल्दी से शुरू करते हैं। यू स्टिल हैव टाइम टुडे। आई एम नॉट गोइंग टू यू नो गिव यू नो टेक मच ऑफ टाइम। आज भी समय है जिनके पास, इफ यू हैव द एक्सेस ऑफ हाफ एन इंच ऑफ टर्मरिक, किसी गमले में जस्ट पुट इट इनसाइड 1 or 2 यू नो इंचेज ऑफ सॉइल, डाल के छोड़ देना। दे विल टेक ए वेरी हार्डी प्लांट, गिव इट वाटर व्हेन इट इज नीडेड, एंड आफ्टर 8 months, and you know why it is worshipped? One more reason. इनका जो लाइफ स्पैन होता है, इट इज 7 to 9 months हल्दी का। आफ्टर 7th month, depending upon the you know ecological conditions, temperature and all that, it will start, the plant will start you know dying, meaning the root, it's a root, you know धरती के अंदर उगता है। मे बी अगर आपको नहीं पता, हल्दी जमीन के अंदर उगती है, तो वो पूरा मैच्योर, जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, द प्लांट विल स्टार्ट यू नो ओवर मैच्योर होके दे विल स्टार्ट डिकेइंग, ब्राउन होना शुरू होगा पत्ता। उनके पत्ते में इतना स्मेल होता है। 7 to 9 months it takes. Look at in human beings. If a kid is born in the 7th month, that also will survive. 9th month में जो आया वो भी survive करता है। Such similarity with our own life. जो भगवान ने, जो प्रकृति ने जो हमको दिया ना, जीता जागता अमृत दे दिया हल्दी के रूप में। इसीलिए आज के दिन हल्दी को लगाते हैं। एंड वी बिकम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट हैड बीन गिवन फ्रॉम द पास्ट एंड इट्स सर्वाइविंग। अभी भी गंगा गंदी हो गई, कुछ भी हुआ, फिर भी पानी रहता है यार। रोग आके भी गंगा इज सर्वाइविंग।
हवा पॉल्यूट हो गई, फिर भी हवा है, ऑक्सीजन है अभी भी। धरती में इतना केमिकल डाला फिर भी फर्टिलिटी मेंटेन है, इट इज स्टिल रिक्यूपरेबल। उसको अभी भी आप ट्रीट कर सकते हैं 6 महीने से 3 साल के अंदर। धरती दैट केमिकल से नॉन केमिकल में आ जाता है, पूरा न्यूट्रलाइज हो सकता है। आर वी रेडी टू टेक केयर ऑफ दिस द ऑफ फैक्टर एंड मेक इट ऑसम, सो दैट जिंदगी इस धरती पर चलती रहे। द लाइफ हैज व्हाट वी हैव गॉट इज अ गिफ्ट, यू हैव टू पास इट ऑन। अगले जनरेशन तक जाना चाहिए ना, सो दैट एज वी लुक टू आवर एंसेस्टर्स विथ प्राइड दैट लुक they knew everything, they didn't have the lab testing facilities and all the papers published from some foreign universities and all that, तब जाके हमको समझ में आया यार टर्मरिक का पेटेंट करा लिया and all that. They still knew it and they did it. ज़्यादा चीखे चिल्लाए नहीं, काम करते गए, and that is why we are surviving fit and fine. Are we ready to pass it on so that हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी हमारे ऊपर ऐसे ही गर्व करें? आर वी रेडी? आई थिंक यस, है ना। अगर अभी नहीं समझे ना तो देर तो हो ही चुका है, आप देख ही रहे नहीं। लेट्स डू इट। सो कितना टाइम हो गया? 33 मिनट्स। ओके, इनफ, है ना। मैं खुद को, मुझे इतना नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं कि आई वॉन्टेड टू ज्ञान देने के लिए मैं नहीं आया था। आई वॉन्टेड टू कन्विंस माई सेल्फ कि जिस भी इन्वायरमेंट में वी आर ग्रोइंग अप, दीज थिंग्स आई हैव टेकन अ बैक सीट। ये सब प्रायोरिटी है नहीं। प्रायोरिटी इज लाइक अर्न मनी एंड ऑल दैट, दैट इज नॉट बैड, बट एट द कॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स। व्हेन आई एम इन फॉर लास्ट 10 years व्हाटएवर, जब धूप से छाँव में आ गया, जब गुरु चरण में है, तो द रियलाइजेशन हैज बिकम मोर, है ना। तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दीज थिंग्स वी कैन सर्वाइव, वी शुड ग्रो इन लाइफ। नो, it's not sustainable। वो तो दिख रहा है ना। सो लेट्स टेक ए वाव, एक प्रण लेते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं ना घर में, उनका मुंह देख के कि इनको धरती, हवा और पानी, माने भोजन, हवा और पानी की कमी नहीं हो, इसके लिए लेट्स इनिशिएट समथिंग। या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस, है ना। प्रश्न के लिए मैंने कुछ जगह नहीं छोड़ा मेरे हिसाब से, है ना। तो आप इतने सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, हम उतना देखने का तो मुझे लग रहा है कि कुछ है नहीं इसमें उतना प्रश्न जैसा, बट थैंक यू अगेन। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन बाय टीचिंग permaculture to the people, to the households, to the working professionals, to the everyone who is in the city. And everyone comes and tells, especially the mothers. Many of you would have done this program, and they say that our kids are getting so interested in this, and so many research has been done, and they say that if your kids are engaged in this green activity for some time per day, then the IQ goes up by 20%. Imagine 20% अगर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बढ़ गया बच्चों का, कितना बढ़िया होगा, है ना। तो डू समथिंग लाइक दिस, एक्सप्लोर, लर्न, गेट ट्रेन्ड एंड स्पेंड लिटिल टाइम। ये कोरोना टाइम, लॉकडाउन में समय में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास है वो है समय। तो इस समय का यूज़ करते हैं ताकि हमारी मुस्कुराहट थोड़ी लंबी हो जाए, हम व्यस्त हो जाएं, हमें पता ही नहीं चले कि हम ये सब चल रहा है, आजू बाजू में सब चल रहा है, ठीक है। टीवी को थोड़ी देर उल्टा घुमा देते हैं, उसको उल्टा लटका देते हैं टीवी को, एंड लेट्स गेट इट टू आवर बालकनी, टू आवर गार्डन, टू आवर रूफटॉप, टू आवर फार्म. Many of our friends and the participants of our course, they are locked in, stuck in their farm, and they say I feel so blessed कि हम यहाँ गायों के बीच में, गोबर के बीच में, पौधों के बीच में लॉकडाउन में रह रहे हैं. वाईफाई हर जगह है, वर्क फ्रॉम होम होता था, वर्क फ्रॉम फार्म हो रहा. Many of the people. So you could be one. Once you learn a little bit of that, you will be getting updates. See if you are interested. That will be a great step in greening the concrete. Okay. Thank you so much. Jai Gurudev.